happy fulfillment life, I would like to share my own failure story, not the success story. Failure is the part of success. Failure is not the opposite of success. That's why I say I will start with my failure story. I passed out my higher secondary 9 plus 2 in year 1977 from Kendriya Vidyalaya, Halwara. It is near Ludhiana. I came to Delhi. My father was in Air Force. When I came to Delhi, I didn't knew what is the cutoff of Delhi University BSc. So when I went physically to all the colleges, including the South Campus, North Campus, I filled up the forms, but I didn't get admission in any of the Delhi college because my percentage was only 58% marks in my higher secondary. So I took admission in Government College, Gurgaon. I passed out my BSc. All 3 years, my percentage was only 58%. My mother wanted me to become a doctor. My father wanted me to become an Air Force officer. So I never became a doctor. I tried for a veterinary also, but I didn't qualify for that. I passed the SSB written examination, but I didn't succeed in the final interview. And my father also wanted that me to become a Air Force officer, so I didn't fulfill his dreams also. So in year 1980, I passed out my BSc with only 58% marks. The only option left out at that point of time was going for LDC, UDC, or probationary officer. IAS was a big dream at that point of time. So I knew what my percentage and what my caliber was. So I appeared for few of the LDC, UDC, or probationary officer exam, but my liking was not there. So finally, I've landed up in sales. So I worked with a company called Procter & Gamble, worked there for a year. And I left the job after 1 year. And why I've shared with you that I left the job after 1 year, that I was having a self-doubt on myself that whether I'm suitable for sales or not. Because when you go in sales, basically you make 10 calls and 1 call is only productive. So you feel dejected yourself. Same is the case with students when they will pass out from the college and when they go into the professional career, you will go for many interviews and you will get rejected. And it is not basically a rejection, it is a process. At times when I used to do the interviews, and I used to tell the student that I don't select or I don't reject anyone. It is basically the compatibility of a student with the organization, whether he fits into that compatibility or not. So from there, I left the job and I was jobless for 3 months. After that, I did my self-introspection. At times, you have to sit with yourself and see to it what is your strength. God has given one strength to everyone. You see, Albert Einstein said that if you want to judge the capability of a fish, a rabbit, an elephant, a monkey, by climbing the tree, then I think so monkey will only be qualifying. So the all other animal will have to do a suicide. So God has given one capability to each one of us to have that. So I did my self-introspection and realized that meeting people, communication is one of my strengths. So I again joined Bajaj Electricals. There I worked for 18 years and got 17 promotions. At times you have to work on yourself, that what has gone wrong, and you have to bounce back. So I bounced back. I worked there for 18 years. Then I worked with Singer for 4 years, and my last company was Havells India Limited, where I worked for 17 years, and I superannuated last year at the post of president of the company, handling the turnover of 10,000 crores of the company. So this is a brief of my success as well as the failure story. So success is not the opposite of failure is not the opposite of success. Failure is a part of success. Now I'll tell you ABCD of human life. A stands for attitude. We all know what is the meaning of an attitude. Let me simplify the meaning of attitude. The dictionary meaning of an attitude is flow of thought at any point of time in your mind. The thoughts could be positive, thought could be negative. Positive attitude does not guarantee you for any success. At times, people always say you have to be positive, you have to be positive. You can't be positive all the time. You can't be motivated all the time. So positive attitude does not guarantee you for any success. Positive attitude with proper action
These are two very important words. Positive attitude with proper action increases the probability of success, does not guarantee you for any success. So positive attitude with proper action. India has got a population of more than 130 crores. We don't qualify for even standing up into the heats of 100 meter, 200 meter, 400 meters. Why? Because we don't do the things in a proper way. We have got two hands, left hand and right hand. Those who are right-handers, they can't write with left. Those who are left-hander can't write it with the left because we have not used the hands in the proper way. And somebody, Hindi poet, has written very good lines. वो कहते हैं ख्वाहिशों से नहीं खिलते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं खिलते फूल झोली में, वक्त की शाखाओं को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दीपक खुद ही जलाना होगा. During this COVID period, we have stayed in house for 2 years. We can't blame COVID. COVID was a part. COVID had come. COVID had gone. COVID will again come. So we have to act ourselves. Let me give you the example of the person who landed first on the moon. We all know that Neil Armstrong landed on the first. You see, Edwin Aldrin was the person who was supposed to land on the moon first because he was a junior. And as per the NASA, the junior has to move out of it and the senior has to remain into the system so that in case if there is any problem. So NASA did a call to Edwin Aldrin to come out of the that spacecraft, but he feared, and that's why Neil Armstrong had to step out. Today, everyone knows the name of Neil Armstrong. Nobody knows the name of Edwin Aldrin, who was a part of that mission to go on the moon. So the moral of the story is that we have to act fast. Being positive and not acting will not do anything. The second A is basically acceptance. There is a serenity prayer. This says, God, grant me the serenity to accept the things which I cannot change. There are certain things which we have to accept. COVID आ गया, हमें नहीं पता था आना है. हमें accept करना है कि COVID आ गया. God, grant me the serenity to accept the things which I cannot change, and courage to change the things which I can, and wisdom to know what I can and what I cannot. हमें accept करना पड़ेगा. Life is not perfect. Life will be very, very cruel. We have to live with imperfections. कभी भी life perfect नहीं होगी. आप ये लेके चलोगे कि आपको पढ़ लिख गए, कॉलेज में आ गए, कॉलेज से बाहर निकलोगे, बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बड़ी अच्छी शादी हो जाएगी, बड़ा अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा, बड़ी अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी. वो कुछ नहीं होता, वो खाली ख्वाबों में होता है. असली जिंदगी में कुछ अलग होने वाला है जो अभी भी तुम्हें पता नहीं है. तो यू हैव टू लिव विद द लाइफ. देखिए, हमें ये देखना चाहिए कि हमें एक्सेप्ट करना है कि हमारा जो बॉडी है ना 25 साल तक ग्रो करती है. बॉडी का हाइट कितनी है, कलर ऑफ द स्किन कितना, फीचर कितने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वी हैव टू एक्सेप्ट इट. अमिताभ बच्चन इज 6 feet. Amir Khan, Shahrukh Khan, and the other Khan, they are not 6 feet. They are only 5 feet, 5.5 inches or 6 feet. But they have to accept it. कोई अपनी हाइट को 1 millimeter से भी नहीं बढ़ा सकता. कोई अपने कलर की स्किन को भी टेम्परेरी तो आप कर लोगे ब्यूटी पार्लर पे जाके थोड़ी देर के लिए, जब फोटोशूट होता है कहीं ना कहीं, शादी ब्याह होते हैं तो सब तैयार होते हैं, हजारों रुपए उसके देते हैं खाली उसको अच्छा दिखने के लिए. वो एक शॉर्ट टाइम के लिए है. आप फीचर भी नहीं चेंज कर सकते. तो लाइफ में कभी भी अपने ऊपर ये बिलीव करके चलो कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसको एक्सेप्ट करिएगा. आपके ऊपर, गर्दन से ऊपर की क्या वैल्यू है वो काउंट करेगी. आपके दिमाग के अंदर, ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या है वो ज्यादा काउंट करता है, रादर देन कि आप ये एक्सपेक्ट करते रहो कि मैं भी, मेरी भी हाइट अच्छी होनी चाहिए थी, मेरा भी कलर ऑफ स्किन फेयर होना चाहिए. पर भगवान के पास में भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो हर किसी को अगर एक जैसा बना देता तो कहीं ना कहीं वो सारे फिर अच्छे लगने, अच्छों की फिर वैल्यू नहीं रहती. तो आई थिंक अपनी जो भी आपकी जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी का मतलब होता है पर्सन इन रियलिटी. इट इज नॉट द कलर ऑफ द स्किन और द हाइट और द योर फीचर्स. वेट पे मैं कहूंगा कि वेट पे आप अपना ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपने वेट गेन कर लिया तो आज की डेट में आपको पता है कि वेट को रिड्यूस करना कितना मुश्किल है. तो यू हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स. लाइफ वुड बी अनसर्टन. वी हैव टू लिव विद इम्परफेक्शन, दैट इज देयर. एंड द थर्ड ए इज बेसिकली अडेप्टेशन. जो लोग MBA करते हैं, BA ग्रेजुएशन करने के बाद में उनको एक डिग्री मिलती है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. मेरा मानना है कि ये वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन पुराना है. वो कोई डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर नहीं बन रहे, ना ही पुलिस कमिश्नर बन रहे हैं कि वो लाठीचार्ज कर सकते हैं या कोई और कर सकते हैं कोई ऐसा काम. इस MBA के डिग्री का भी नाम जो है वो चेंज कर देना चाहिए. उसका नाम करना चाहिए मास्टर ऑफ बिजनेस एडेप्टेशन.
देखिए डार्विन की थ्योरी आज भी रेलेवेंट है. इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट वन दैट सर्वाइव टुडे. द स्पीसीज दैट सर्वाइव टुडे आर द स्पीसीज दोज हु आर अडैप्टिव टू चेंज. इस कोविड में भी कई लोगों ने खाली घर में बैठ के टाइम पास किया है. कुछ लोगों ने अडेप्ट किया है, अपने आप को स्किल सेट चेंज किया है, अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट किया है, अपने ऊपर अपनी लर्निंग बढ़ाई है. और मैं आपको बता दूं ये जो डिग्री आपने लिया है ना, ये लेने के बाद में देखिए हम 14 साल स्कूल में जाते हैं, 6 साल कॉलेज में जाते हैं, 20 साल में हम किसके लिए जा रहे हैं? डिग्री लेने के लिए. डिग्री लेने के बाद में क्या करना चाहते हैं हम? नौकरी चाहते हैं. नौकरी करने के बाद हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए. और इन 20 सालों में हमें किसी ने नहीं सिखाया कि पैसा कमाया कैसे जाता है और पैसे को संभाला कैसे जाता है. तो आई थिंक आप अपनी लर्निंग जितनी बढ़ाते जाओगे उतनी आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी. तो अभी जो एजुकेशन ली है ये खाली 15% ही काम आएगी आपके प्रोफेशनल करियर में, उससे ज्यादा काम आने वाली नहीं है. तो आई थिंक आपको स्किल्स पे काम करना चाहिए. एक आस्क प्रिंसिपल होता है ASK. K स्टैंड फॉर नॉलेज, एस स्टैंड फॉर स्किल्स एंड A स्टैंड फॉर एटीट्यूड. आपको बस स्किल सेट इंप्रूव होना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन आप कोई भी ज्वाइन कर लोगे, कंपनीज डोंट गिव यू सैलरी, कंपनी गिव यू सैलरी एज पर योर स्किल्स. काउज डोंट गिव मिल्क, यू हैव टू एक्सेप्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप. सो कंपनीज में कभी भी कोई सैलरीज किसी के लिए नहीं होती. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्किल सेट. There are people those who get only 20,000 rupees as a salary. There are people those who draw crores of salary. सुंदर पिचोई जो गूगल के CEO हैं, उनकी सैलरी जो है एक साल की 1500 करोड़ है. आप कभी 1500 करोड़ के पीछे जीरो लगा के देख लोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कितने जीरो लगेंगे, कितने लगेगा. वो स्किल सेट है. आज भी कंपनीज में पैसा मिलता है. कई बार लोग ये कहते हैं कि कंपनी 20,000 रुपये देती है. कंपनी आपको 20,000 रुपये देती है क्योंकि आप 20,000 के लायक हैं. कंपनी किसी को 2 लाख भी देती है, किसी को 2 करोड़ भी देती है. तो आप अपनी स्किल्स बढ़ाते रहेंगे तभी होगा. तो 3 A मैंने बताया. पहला है एटीट्यूड. एटीट्यूड के साथ में आपको प्रॉपर एक्शन करना पड़ेगा. दूसरा है एक्सेप्टेंस. लाइफ पर इम्परफेक्ट है, कभी भी जो है अनसर्टेनिटीज में हमें जीना पड़ेगा. तो आप ये मत लेके चलिए कि सब चीजें परफेक्ट रहेंगी, सब चीजें सही रहेंगी. तीसरा मैंने आपको बताया कि आपको लाइफ में अडेप्ट करना पड़ेगा. कॉलेज के बाद में आपको नौकरी मिलेगी, वो नौकरी शायद ऐसी नहीं होगी कि जो आपके लायक हो. आपको उसमें अडेप्ट करना पड़ेगा. फिर आपको स्किल सेट चेंज करनी पड़ेगी और फिर आपको देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ लाइफ में बाउंस बैक करूं और दूसरी पोजीशन में जाके कहीं और काम करूं जो मेरे स्किल्स के बराबर है. और दूसरा A के बाद दूसरा अल्फाबेट आता है B. यू हैव टू हैव अ सेल्फ बिलीफ. देखिए कई बार हम कहते हैं हमें कॉन्फिडेंस नहीं है. कॉन्फिडेंस देखो आपको खुद ही लेके आना पड़ता है. आपको खुद ही अपने ऊपर बिलीव करना पड़ता है. मैं आपको बताता हूँ. और बिलीफ के ऊपर कहीं ना कहीं आपका एंकर ऑफ फेथ जरूर होना चाहिए. चाहे आपकी मदर है जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, चाहे आपके फादर हैं जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, चाहे आपका फ्रेंड है, चाहे आपकी सिस्टर है, चाहे ब्रदर है, चाहे अंकल है. कोई ना कोई ऐसा आप देखो आदमी घर पे या फैमिली में जिसको आप पे फेथ हो कि आप कुछ कर सकते हो. मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ. ये राहुल द्रविड़ जो 15 साल का था, तो वो अंडर 15 खेल रहा था, 8th क्लास में था. तो उसके फादर स्कूल में गए और उन्होंने कहा कि मैं इसको भेजूंगा नहीं इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन में क्योंकि इसकी पढ़ाई खराब हो जाती है. तो उनके प्रिंसिपल जो है ना, फादर कोयलो थे, उन्होंने उनको कहा कि मेरे को कॉन्फिडेंस है कि ये क्रिकेट अच्छा खेलता है, तुम पढ़ाई की जिम्मेवारी मेरे पे छोड़ दो, इसको आप खेलने के लिए जाने दो. तो राहुल द्रविड़ का ये कहना है कि अगर मेरे फादर के ऊपर मैं बिलीव करता तो शायद मेरे फादर मेरे को जाने नहीं देते, बट मेरे प्रिंसिपल को मेरे ऊपर फेथ था. आप लोगों ने माइकल जॉर्डन का नाम सुना होगा कभी, बास्केटबॉल प्लेयर है. माइकल जॉर्डन जब छोटा था तो उसके फादर ने उसको एक टी-शर्ट दी व्हाइट कलर की. उसको बोला कि इसको ये $1 की है, आप इसको $2 का बेच के. तो उन्होंने कहा 100% प्राइस इंक्रीज कौन देता है? तो उन्होंने कहा कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं. तो वो गया, उसने जाके कोशिश करके उसको $2 की बेच के आ गया. तो अगले दिन उनके फादर ने उनको कहा कि नहीं, अब तुम्हारा टेस्ट ये है कि यही टी-शर्ट तुम्हें अगली दे देता हूँ, तुम इसको करीब करीब $20 की बेच के आओ. उन्होंने कहा था अभी तो $2 की बेची, अभी $20 की बेच के आओ. तो उन्होंने क्या किया, माइकल जॉर्डन ने उसके ऊपर एक मिकी माउस की फोटो बनाई और एक रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हो गया. तो रेलवे स्टेशन के बाहर में जब खड़ा हुआ तो किसी फादर के बेटे का बर्थडे था, उसको याद नहीं था कि भी गिफ्ट लेना है. उन्होंने वो $20 की वो वाली मिकी माउस की जो टी-शर्ट पे फोटो बनी हुई थी वो ले ली बच्चे के लिए, गिफ्ट के लिए. तो घर पे जाके उसने कहा मैंने $20 की बेच दी. तो उसके फादर ने उसको $5 की टिप दी माइकल जॉर्डन को. तीसरे दिन फिर उसको एक टी-शर्ट दी और उसको बोला कि अब तुम अपने हिसाब से इसको बेच के आओ. ये स्टोरी आपको गूगल पे मिल जाएगी, आप इसको पढ़ लेना.
तीसरे दिन माइकल जॉर्डन एक कंसर्ट में गया जहाँ पे कोई ये फिल्मी हस्ती आई हुई थी, फराह फॉसेट। तो वो शो देख रहा था, इसकी उम्र 12 साल थी, बहुत छोटा था ये। तब जब शो खत्म हुआ तो लोगों के पैरों के बीच में से निकल के ये स्टेज पे चढ़ गया और उसने टी शर्ट फराह फॉसेट को दे दी हाथ में और बोला कि इस पे ऑटोग्राफ दे दो। उस फराह फॉसेट ने, क्योंकि एक ही बच्चा वहां पे आया था और बच्चा जब किसी भी सेलिब्रिटी के पास आता तो उसको मना नहीं करते, बड़ा कोई आया तो फिर भी वो कहते हैं कि नहीं आप अभी क्यों आगे के आगे, बच्चा था उसने उस पर ऑटोग्राफ दे दिया। उसने वो टी शर्ट $200 की बेची। जब वो $200 की बेची तो घर पे गया तो उसके फादर को बिलीव ही नहीं हुआ कि $200 की बिक सकती है। मैंने आपको दोनों स्टोरी इसलिए बताया कि आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि भाई ऐसा है। वो कहते हैं दुनिया ऐसी बावरी जो पत्थर पूजन जाए, घर की चक्की कोई ना पूजे जिसका पीसा खाए। हम मंदिर मस्जिदों में जाके भगवान की पूजा करते हैं, घर में जो चक्की जिसका पिसा हुआ आटा खाते हैं हम कभी उसको भी उसकी पूजा नहीं करते। तो मैं घर की चक्की आपको खुद को बोल रहा हूँ। भगवान ने देखिए आपको जो है ये बॉडी जो दी है ना, ये बहुत ही प्राइसलेस बॉडी है। इसका कोई भी पार्ट आप बेच नहीं सकते। मैं आपको कहूँ ना आप अपनी एक आंख दे दो, मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, आप नहीं दोगे। मैं आपको बोल दूं कुछ भी आप बॉडी का एक पार्ट दे दो, आप नहीं बेचोगे, क्योंकि इतनी प्राइसलेस बॉडी है, पर हम इसकी वैल्यू नहीं करते कई बार। तो आप ये देखिए कि इसको अगर भगवान ने आपको एक गाड़ी चलाने के लिए इस प्लैनेट पे दी है, इस अर्थ पे दी है, तो आप इसको खुद चलाओ, किसी और पे ना दो। मैं अगर आपको आज एक कार गिफ्ट दे दूं और बोलूं कि आप किसको दोगे, आप खुद चलाओगे या ड्राइवर को दोगे, तो आप बोलोगे मैं खुद ही चलाऊंगी क्योंकि मेरे को आती है गाड़ी चलानी, या खुद ही चलाऊंगा। बट आप ये देखिए कि भगवान ने अगर हमारे को इतनी अच्छी बॉडी दी है इस प्लैनेट पे चलने के लिए और 20-25 साल की हमारी उम्र अपने आप बढ़ा दी, उसने अपने आप सब कुछ ग्रो किया, हमने कोई इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं करी। आज के बाद की जिम्मेवारी इसको चलाने की हमारी है। देखिए योर पेरेंट्स ऑल्सो हैव डन देयर ड्यूटी बाय ग्रोइंग यू अप। उन्होंने आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन दिलाया, और आप सब फॉर्चुनेट हो कि दिल्ली के कॉलेज में आपको एडमिशन मिला हुआ है। मैंने आपको अपनी स्टोरी सुनाई कि मेरे को दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, तो मेरा आज भी ख्वाब रहता था कि मैं दिल्ली के में नहीं पढ़ा, पर इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि यार मेरे को अगर साइंस सिफर में मिल जाता या एसआरसी से मिल जाता या और किसी में मिल जाता तो अच्छा रहता। उस बात की आप चिंता मत करिएगा। आप जिस भी कॉलेज से पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का नाम आप बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने आपको एक शफा दी है। और दूसरा बी है बिहेवियर। देखिए प्रोफेशनल कैरियर में मैंने 40 साल नौकरी करी है। मैं आपको बता दूं यू गेट रिस्पेक्ट ओनली बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। वन इज योर पोजीशन, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उस टाइम पर, एंड द अदर इज योर बिहेवियर। पहले वाली टेम्परेरी है, कुर्सी टेम्परेरी है, क्योंकि आज आप हैं कल नहीं है। मैं पिछले साल रिटायर हो गया, आज मैं उस कुर्सी पे नहीं हूँ। तो जो लोग मेरे को उस टाइम पे रिस्पेक्ट करते थे आज शायद करें या ना करें उनकी चॉइस है, पर अगर मेरा बिहेवियर उनके साथ सही है तो आज भी वो चॉइस वो सही आपको ट्रीट करते हैं। तो आई थिंक जब आप प्रोफेशनल कैरियर में जाएंगे तो आप ये देखे चलिएगा, क्योंकि उस टाइम पर आपको ऑब्जर्व करने वाले बहुत लोग हैं पर आपको गाइड करने वाला कोई भी नहीं है। आप ये लेके चलिए कि प्रोफेशनल कैरियर में आपके जो गाइड करने वाले हैं वो 1 या 2 ही लोग होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। बाकी सब लोग वो क्रैब मेंटालिटी के हिसाब से आपकी टांग नीचे खींचने के लिए खुश होंगे, किसी भी तरह से नहीं होते। कभी भी जो आपके साथ में जो लोग बैठे होते हैं ना, देखिए क्रिकेट में जो बैट्समैन होता है ना उसको सबसे ज्यादा डर पता है किससे होता है? विकेट कीपर से, क्योंकि उसको स्टंप कर सकता है। आप भी ये देखिए चलिए कि आपके साथ में जो क्लोज है ना लोग काफी, वही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप ये देखे चलिए कि आपको सही ढंग से आप बिहेव करेंगे तभी आप चल सकते हैं। और तीसरा वर्ड है बी में बैलेंस। देखिए अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद प्रोफेशनल कैरियर में चेज करेंगे, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल कैरियर को चेज करेंगे। मेरा सजेशन है कि कभी भी एकेडमिक कैरियर को और प्रोफेशनल कैरियर को चेज करते करते आप लाइफ में बैलेंस मत खराब कर दीजिए। बैलेंस का मतलब यह है कि आपने लेमन एंड स्पून रेस देखी होगी, कभी स्कूल में करी होगी, या लेमन एंड स्पून रेस नहीं होता तो कई बार लेमन एंड मार्बल कर देते हैं। मार्बल होता है तो उसमें कौन जीतता है? वही बच्चा जीतता है जो एंड में जिसका मार्बल या लेमन स्पून में होता है। वो बच्चा नहीं जीतता जो तेज दौड़ रहा होता है। प्रोफेशनल कैरियर में मैंने देखा है कि कई लोग बहुत तेज दौड़ते हैं, और प्रोफेशनल कैरियर में चेज करते करते आप 3 चीजों का ध्यान रखेंगे। पहली है अपनी हेल्थ, दूसरी है आपकी फैमिली, और तीसरी है रिलेशनशिप। देखिए आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये नहीं सोच सकते कि आप 10 साल बाद या 20 साल बाद आप कभी लाइफ को रिवाइंड कर देंगे और आप दोबारा से वो वाली 20 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में आ सकते हैं। नहीं आ सकते। आप हेल्थ जो अगर आपने खराब कर ली वो वापस नहीं आ सकेगी। दूसरा है फैमिली। फैमिली को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट सिस्टम जो है फैमिली है। मैंने पहले कहा
प्रोफेशनल लाइफ में आपके पास 99% लोग हेलो फ्रेंड्स होंगे, एक भी आपका नहीं होगा। मैं उस दिन स्टोरी पढ़ रहा था कि किसी ने प्रैंक करते टाइम एक बच्चे के पीछे, पैंट के पीछे एक स्टिकर चिपका दिया, यू आर अ फूल, और वो कॉलेज में घूमता रहा सारा दिन। पर जब एक क्लास में बैठा तो एक मैडम ने कोई क्वेश्चन दिया जो ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करना था, किसी बच्चे को नहीं आया, 40 बच्चों में से उसको आया। वो जब खड़ा हुआ वहाँ सॉल्व कर रहा था तो लोग हंस रहे थे कि उसके पीछे लिखा हुआ था आई एम ए फूल। मैडम ने भी पढ़ लिया। मैडम ने बाद में कहा कि इससे पहले कि मैं आप सब लोगों को डांटूं, मैं आपको एक बात बता दूंगी कि देखिए इस बच्चे के पीछे लिखा हुआ था, आप देखिए कि सारा दिन ये कॉलेज में घूमता रहा है, इसका कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था, मित्र नहीं था जो उसको ये बोल सके कि आपके पीछे एक स्टिकर लगा हुआ है और आप इसको स्टिकर को हटा दो, आप स्टिकर को हटा दोगे। तो आई थिंक ये मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ कि प्रोफेशनल करियर में भी आपको जो लगेगा कि जो आपके बहुत क्लोज हैं वो आपके क्लोज नहीं होंगे। देखिए जब आप प्रोफेशनल करियर में जाएंगे तो 3 शौक लगेंगे आपको। पहला है आपका जो नॉलेज शौक, आपको लगेगा यार जो मैंने पढ़ाई करी वो तो रेलेवेंट ही नहीं है इस जॉब से, तो मैंने कहाँ इतनी पढ़ाई क्यों करी है। आपको अंदर कहीं ना कहीं अपने आप पर सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाएगा, यार मैं राइट फील्ड में हूँ भी या नहीं हूँ। दूसरा शौक लगेगा आपको एक तरह का स्टेटस शौक। अभी कुछ लोगों के पास गाड़ी होगी, कुछ लोग गाड़ी पर जा रही होंगी, लड़कियां कॉलेज में कुछ कैसे जा रही होंगी, कोई पेरेंट छोड़ के आएंगे। जब आप प्रोफेशनल करियर में जाओगे तो आपका बॉस शायद आपको ये भी कह देगा बेटा इसकी फोटोकॉपी करा के लाओ, इसका जेरोक्स करा के लाओ, इसको फाइल में कर दो। आपको लगेगा कि मैं पीएन हूँ क्या। ये स्टेटस शौक आपको लगेंगे। और तीसरा पॉलिटिकल शौक लगेगा। आपको पता नहीं लगेगा कि आपने बात कहाँ करी थी और बात कहाँ चली गई। आपने गॉसिप किया 2-3 लोगों के साथ जो आपको लगा था कि आपके बहुत क्लोज हैं, और आपको ये नहीं बात पता लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में आपके बॉस के पास वो पहले अगले 10 मिनट में बात पहुंच जाएगी। तो 2-3 तरह के आपको बैलेंस मेंटेन करके चलने पड़ेंगे। सबसे क्लोज आपका रहेगा हेल्थ, सेकंड इज योर फैमिली एंड थर्ड इज योर रिलेशनशिप। देखिए कोविड के पीरियड में आपने देखा होगा कि जिन लोगों की रिलेशनशिप अच्छे थे उनको हॉस्पिटल में एडमिशन मिल गया, और जिन लोगों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे उनके पास करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी वो स्ट्रेचर पर मर गए। रिलेशनशिप अगर आपका अच्छा है, मेरा अगर आज रिलेशनशिप अच्छा है, मैं एक फोन करूंगा तो मेरा काम हो सकता है। और रिलेशन अगर मेरा नहीं अच्छा, मैं जितने मर्जी पैसे टेबल पर रख दूं, कोई मेरे को हेल्प करने वाला नहीं है। एंड द थर्ड अल्फाबेट इज सी। सी स्टैंड फॉर चेंज। हम सबको पता है चेंज होना है, पर हम चेंज नहीं होते। पीपल डोंट रेजिस्ट चेंज, दे रेजिस्ट बीइंग चेंज्ड। मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ कि द थिंग्स विच आर सिंपल आर नॉट इजी। मॉर्निंग वॉक करना सिंपल है, इजी नहीं है। जिम में जाना सिंपल है, इजी नहीं है। रात को ब्रश करना सिंपल है, इजी नहीं है। हम अपनी हैबिट्स चेंज नहीं करते। पीपल डोंट रेजिस्ट चेंज, पीपल रेजिस्ट बीइंग चेंज। जब उनको चेंज करने की बारी आती है तो होता है। मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। मेरे को पता है गर्मी की छुट्टियों में कुछ लड़के जरूर मॉर्निंग वॉक करते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है, क्योंकि उस कॉलोनी की लड़कियां भी मॉर्निंग वॉक कर रही होती हैं। उनके पीछे पीछे वो उठ के सुबह चाहे नींद भी करके वो 1-2 महीने वॉक कर लेते हैं। तो आई थिंक रात को ब्रश करने की हैबिट जो है वो हमें पता है कि जरूरी है, पर हम कितने लोग हैं उसको करते हैं। देखिए गुड हैबिट्स आर डिफिकल्ट टू कम बट इजी टू लिव विद। बैड हैबिट्स आर इजी टू कम एंड डिफिकल्ट टू लिव विद। देखिए आज स्मोकिंग, आप कॉलेज में है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ड्रग्स है, ये बहुत आसान है हैबिट को लाना, पर वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन योर प्रोफेशनल करियर व्हेन यू ग्रो। आई थिंक अच्छी आदतें जो है बड़ी मुश्किल से आती हैं। मैं आज भी बता रहा हूँ, मैं आज भी इसलिए हर सेमिनार में बोलता हूँ कि रात को ब्रश करना जरूरी है, क्योंकि जब मैं रात को सोता हूँ तो मेरे को याद आता है कि यार आज सेमिनार में तूने बोला था, आज नींद आ रही है पर कर ले, कोई बात नहीं, जो बोलते हो वो करना भी चाहिए आपको। तो आई थिंक कुछ हैबिट्स जो हैं हमारे को चेंज करनी चाहिए। द अदर अल्फाबेट इज कम्युनिकेशन। हम सब लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि फास्ट इंग्लिश स्पीकिंग इज गुड कम्युनिकेशन। आज मैं आपका मिथ दूर कर देता हूँ, मैं काफी कुछ हिंदी में बोल रहा हूँ। फास्ट इंग्लिश स्पीकिंग इज नॉट अ गुड कम्युनिकेशन। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, आई विल रिपीट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इज अ स्किल। आपको स्किल आनी चाहिए कम्युनिकेट करने की। लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप किस भाषा में बात करें। आज मोदी जी बात करते हैं भाइयों और बहनों मित्रों, तो वो भी कम्युनिकेट कर देते हैं। तो आप वर्ल्ड में कहीं भी जाते हैं, चाहे आप इंडियन नेशनल है तो आप हिंदी में बात कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे भी आप जाते हैं तो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंग्लिश नहीं आनी चाहिए,
बट अगर आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं आती, और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ इंदिरा नूई का जो सीईओ थी पेप्सी की, वो येल यूनिवर्सिटी में कोर्स करने गई थी एमबीए का इंडिया से करने के बाद में, और फर्स्ट ईयर में कम्युनिकेशन में फेल हो गई थी। आपको पता है वो कम्युनिकेशन में फेल क्यों हुई? 1-to-1 नहीं हो तो मैं अभी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, मेरे को पता आप रिप्लाई नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं कम्युनिकेशन में फेल इसलिए हुई थी कि वो फास्ट इंग्लिश बोलती थी। साउथ इंडियन थी, हमें पता है साउथ इंडियन बहुत फास्ट इंग्लिश बोलते हैं। तो आप इतनी भी फास्ट बात मत करो कि अगले आदमी को समझ ही ना आए। तो आपको लिसनिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। देखिए, जब आप बोलते हैं तो आप वही बोलते हैं जो आपको आता है। जब आप लिसन कर रहे होते हैं तो आप कुछ ना कुछ नया सुनते हैं। तो लिसनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन की स्किल जो है वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई थिंक आप किसी भी लैंग्वेज में बात करते हैं, देखिए इंडिया में 40 भाषाएं बोली जाती हैं, 16 भाषाएं तो हमारे जो हैं करेंसी नोट पे लिखी हुई हैं। तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जाते हो तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो कम्युनिकेशन में आपको स्किल है वो आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, और कम्युनिकेशन के लिए आपको अगले आदमी को पहले तैयार करना पड़ता है। अगर आपको मोटरसाइकिल चाहिए तो फादर को सीधा जाके नहीं कम्युनिकेट कर सकते कि पापा मेरे को 1 लाख रुपए दो, मेरे को गाड़ी लेनी है, स्कूटर लेना है, मेरे को मोबाइल लेनी है, स्कूटी लेनी है। आपको पहले प्रिपेयर करना पड़ता है उनको कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तब जाके है। आप फादर को किसी को जाके बोलना चाहो कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, तो फादर ऐसे तैयार नहीं होंगे। उनको पूरा प्रिपेयर करना पड़ता है। इसीलिए कम्युनिकेशन के लिए प्रिपरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन आप उस टाइम पर कर सकते हो कि जब आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, पर उसके लिए पहले किसी को प्रिपेयर करना चाहते हो। देखिए, लव कभी भी एक दिन में नहीं होता, वो प्रिपेयर हो रहा होता है, और आपको पता भी नहीं लगता कि किस टाइम पर वो हो गया और किस टाइम पर तक कंटिन्यू होता है। अभी तो आप कॉलेज में आपको उसका लव का मतलब आधा पता है, पर जब शादी हो जाएगी तो आपको जिंदगी भर निभाना पड़ेगा, तो वो पता लगेगा कि वो कंटिन्यू करना कितना मुश्किल हो जाता है उस चीजों को जो है। एंड द अदर सी इज बेसिकली कनेक्ट। जब भी आप किसी को कोई चीज कन्विंस करना चाहते हो तो आप कन्वे करते हो मैसेज। अगर मैं आपको कन्विंस करना चाह रहा हूँ कि ये अच्छा है, ऐसा ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो मैं कन्वे कर रहा हूँ। आज मैं कैसे कन्वे कर रहा हूँ? आज मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। शायद आपके कॉलेज में होता तो मैं फिजिकल होता तो और अच्छी तरह से आपको बॉडी लैंग्वेज के साथ कन्वे करता। तो कन्वे, किसी भी चीज को कन्विंस करने के लिए मैं मैसेज कन्वे करता, चाहे वर्बल करता, चाहे पीपीटी करता, चाहे फोन किसी तरह से बात करता। पर जब तक मेरा कनेक्ट नहीं है ना आपके साथ में, तब तक वो मैसेज कन्वे नहीं हो। आज कनेक्ट बहुत जरूरी है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप 5 साल के बच्चे के साथ बात कर रहे हैं तो उसके साथ टॉम एंड जेरी की बात करनी पड़ेगी, उसके साथ मिकी माउस की बात करनी पड़ेगी, उसके साथ आप यूरोप, ये रशिया की और यूक्रेन की लड़ाई की बात नहीं कर सकते। आपको उसके साथ ही कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जिसके साथ में भी आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसके साथ आपका जब तक कनेक्ट प्रॉपर नहीं है तब तक कुछ नहीं होने वाला। एंड द अदर डी इज द अल्फाबेट डी। अभी तक मैंने आपको बताया एटीट्यूड, एक्सेप्टेंस और अडेप्टेशन ए। बी में बताया बिलीफ, बिहेवियर एंड बैलेंस। सी में मैंने बताया आपको चेंज, कम्युनिकेशन एंड कनेक्ट। डी में आपको बताऊंगा इज डायरेक्शन। देखिए, आप डायरेक्शन अभी लाइफ में करने के बाद, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आपकी नौकरी लग जाएगी, पता नहीं आपकी डायरेक्शन सही हो या नहीं हो, और आप कुछ टाइम के बाद में कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। एक एयरक्राफ्ट अगर दिल्ली से जा रहा है, लेट अस अज्यूम वो फ्लाई कर रहा है न्यूयॉर्क के लिए, पहले 1 घंटे में अगर उसकी डायरेक्शन पायलट सही सेट नहीं करता, तभी भी 1 घंटे बाद वो कोर्स करेक्शन कर सकता है, डायरेक्शन सेट कर सकता है, जब तक वो एयरक्राफ्ट शायद इंडिया की बाउंड्रीज में होगा या पाकिस्तान के ऊपर होगा। पर अगर वो 16वें घंटे में डायरेक्शन वो ठीक करना चाहेगा तो टोरंटो में उतरेगा, न्यूयॉर्क में नहीं उतर सकता। तो आप लाइफ में कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। देखिए, करण और अर्जुन के बीच में करण वॉज अ बेटर वॉरियर। उसका डायरेक्शन देने वाला कौन सही था? वो लॉर्ड कृष्णा थे। अर्जुन तो तैयार भी नहीं था लड़ाई करने के लिए। कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको डायरेक्शन के लिए भी आपको एक मेंटर, गाइड या कोई ना कोई कोच चाहिए होगा। वो जब तक आपको सही ढंग से एडवाइस नहीं करेगा या सही ढंग से आपको नहीं करेगा, तब भी कई बार आपको खुद की अपनी चीजों का भी पता नहीं होता कि आप में क्या स्ट्रेंथ है। आज देखो, चाहे क्रिकेट भी देखो तो बैटिंग कोच अलग होता है, बॉलिंग कोच अलग होता है, फील्डिंग कोच अलग होता है। हमें सबको स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं डायरेक्शन को देने के लिए। आज आप स्कूल कॉलेज में क्यों आए 20 साल तक? आप डायरेक्शन लेने के लिए आए, पढ़ने के लिए आए, लोगों को से पूछने के लिए आए कि क्या होता है क्या नहीं होता। एंड द अदर डी इज बेसिकली डिसिप्लिन। अभी तक स्कूल कॉलेज में आप डिसिप्लिन हैं,
वो अंडर कंट्रोल्ड पैरामीटर्स हैं। पर इसके बाद की लाइफ आप अकेली हो जाएगी। आप जॉब पे जाओगे, किसी को पता नहीं आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे। अभी तो बाहर जाने के लिए भी बता के जाना पड़ता है कि मैं यहाँ जा रही हूँ या जहाँ जा रहा हूँ, टाइम बता के जाना पड़ता है। बट कुछ टाइम के बाद में जब आप जॉब में जाओगे तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपके पास फाइनेंशियल भी इंडिपेंडेंस हो जाएगी। आप 1,50,000 रुपये कमा रहे होगे, आपको भी कोई भी गंदी आदत लग सकती है, चाहे वो स्मोकिंग की हो, ड्रिंकिंग की हो, ड्रग्स की हो, तो आपको लाइफ का डिसिप्लिन खुद ही होना चाहिए। देखिए आपके माइंड के पास में ना एक गार्ड होता है, जिसको कहते हैं ना, एक गार्ड खड़ा होता है। उस गार्ड को आप हर टाइम खड़ा रहने दीजिए। माइंड जो है ना वो बहुत शैतान है, वो भटकता रहता है। उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए आपको एक गार्ड जो है ना, जैसे वो बाउंसर खड़े होते हैं ना, वो खड़ा करके रखिएगा। और कहीं भी आप गलत काम कर रहे हो तो उस गार्ड से पूछ के जाना कि मैं जा सकता हूँ, नहीं जा सकता। ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, विजुअलाइज कर सकते हैं। पर उस गार्ड को खड़ा रखोगे तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट लाइफ में डायरेक्शन जो है भूल जाओगे, भटक जाओगे। और सुबह ये करना है, शाम को वो करना है, ये करना है, वो करना है, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। आज भी लोगों इनडिसाइसिव है। आप देखो सामान खरीदने जाते हैं, लोग पूछते रहते हैं ये लूँ वो लूँ, ऐसा अच्छा लग रहा है, ऐसा अच्छा लग रहा है। आप डिसाइसिव हो ना, खुद आपको पता होना चाहिए कि आप डिसिप्लिन है, अगर आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एंड द अदर डी इज बेसिकली डेडिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं आपको बता दूं, कंपटीशन टॉप 10 में है खाली, 90% कंपटीशन है ही नहीं। एक पेरेटो प्रिंसिपल आपने सुना होगा, 80-20 रूल होता है। आपका जो 20% ऊपर का जो टॉप है उसी में कंपटीशन है, और 90% तक का बैरियर सारे लोग पहुंच जाते हैं। 90 to 100 में जाना मुश्किल है। आप देखिए परसेंटाइल में भी 90 to 100 में जाना कितना मुश्किल है। 90 से 70 to 90 में तो सारे पहुंच जाते हैं आज की डेट में। मैंने अपनी परसेंटेज बता दी 58%, वो आज की डेट में करीब करीब 78% के बराबर होगी। तो वो पोजीशन पे तो सारे पहुंच जाते हैं, पर 90 से परसेंटाइल ऊपर लेके जाने बड़ी मुश्किल होती है। वहां डेडिकेशन आपको बहुत जरूरी है। वहां अगर आप अपना एक्स्ट्रा एनर्जी लगाएंगे तभी आप उस चीजों को कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंट हो जाएंगे और डिसिप्लिन हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपको वो काम करने का तरीका भी आ जाएगा। एंड द अदर अल्फाबेट इज ई, स्टैंड फॉर एनर्जी। देखिए आप में एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। एक लैंप होता है आपके घर में, बल्ब होता है, उसमें एनर्जी है, पर जब तक उसको पावर हाउस से एनर्जी नहीं मिलती तब तक वो चलता नहीं है, जब तक कनेक्ट नहीं होता। बिजली का प्लग नहीं डालोगे, ऑन नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो आई थिंक यूनिवर्स में बहुत एनर्जी है। भगवान ने आपको बल्ब की शेप में दिया हुआ है, पर आपको तार जोड़नी पड़ेगी, स्विच ऑन करना पड़ेगा। तो जब तक आपके पास में वो एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। मैं अभी भी एक बाहर आउटडोर गया हुआ था, कोई काम से, कोई अर्जेंट काम था, फ्रॉम 2 o'clock to 5 o'clock। आने के बाद में भी मैं आपके साथ वेबिनार कर रहा हूँ। मैंने अभी तक चाय नहीं पी, पानी नहीं पिया। आज पहली बार मैं टी शर्ट में वेबिनार कर रहा हूँ, नॉर्मली सूट में करता हूँ। पर मेरे को एक एक्स्ट्रा एनर्जी सेव करके रखनी थी आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अगर मैं 10% भी इम्पैक्ट कर दूं, अगर आप 100 बच्चे भी अटेंड कर रहे हैं उसमें से 10% लोगों को भी 10% बातें ही जो मैंने बोली हैं वो भी अगर समझ आ जाती हैं तो आई थिंक आई हैव डन माय जॉब। तो कभी भी जब आप इंटरव्यू में जाते हैं ना, मैं आपको बता दूं, आपकी एनर्जी चेक हो रही होती है कभी। इसीलिए इंटरव्यू में काफी दूर से आपको बुलाया जाता है कमरे में ना, और देखा जाता है कि आप कैसे वॉक कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं, आपका बॉडी पोस्चर क्या है, आपकी एनर्जी लेवल क्या है। क्योंकि किसी को भी कोई थके हुए, बीमार, परेशान लोगों को रखने का कोई फायदा नहीं है। हर कोई कंपनी उन्हीं लोगों को रखना चाहती है जो एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। आप देखिए क्लास में मॉनिटर किसको बनाया जाता है? जो एक्स्ट्रा एनर्जी काम है, जो कहता है कि जी मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। ऑर्गेनाइजेशन में भी चेक हो रहा होगा कि आपका एनर्जी लेवल क्या है। अगर आप शाम को कह दो नहीं मैं 5:30 बजे मैं अपना बिस्तर पैक करके जा रही हूँ, और अगर कोई काम अर्जेंट हो, इंपॉर्टेंट हो, तो आप देखिए घर में जब आपकी शादी होती है या कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो आप कभी थकते हो क्या? नहीं थकते। क्यों नहीं थकते? क्योंकि हमारा पर्पस कुछ और होता है। तो क्योंकि वो हार्मोन सिक्रेट हो रहे होते हैं कि नहीं मेरे को ये काम करना है। उसके बाद चाहे आप 2 दिन के लिए सोते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आपको काम करना है तो आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। एंड द अदर इज बेसिकली इमोशंस। देखिए इमोशंस हमारे को फ्लो करने चाहिए। I can borrow any expensive clothes, but I can never borrow my expression, my emotions. अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आप खुश नहीं है ना, तो आपका जो क्लोज फ्रेंड है ना, वो आपका फेस रीड करके बता देगा कि आज टेंशन में क्या बात है। सबसे पहले पूछ देगा आज बताओ क्या प्रॉब्लम क्या, क्योंकि आप इमोशन को हाइड नहीं कर सकते। एंड द अदर इज बेसिकली एंथुसियाज्म। जैसे मैंने आपको कहा, आप एनर्जेटिक हो, आप में एंथुसियाज्म भी होना चाहिए। आप देखिए सेल्स में क्या करता है एक बच्चा, एक जो कार बेचने वाला जो दुकानदार है, वो छोटे बच्चे को, 4 साल के बच्चे को कार चला के छोड़ देता है। उसने क्या किया? ही हैज ट्रांसफर द एंथुसियाज्म फ्रॉम ए सेलर टू ए बायर। उसने जो एंथुसियाज्म था वो, और एंथुसियाज्म कंटेजियस होता है।
अगर आज आप 100 बच्चे हैं कॉलेज में, आपके पास में 5 फ्रेंड है, अगर आप एंथुसियास्टिक हैं, आज पढ़ना है, ये करेंगे वो करेंगे, आज खेलेंगे ये करेंगे वो करेंगे, तो बाकियों को भी जोश आ जाता है। अगर आपको नहीं, मेरा सिर दुख रहा है यार, किसी का गोली है क्या, मेरे को दे दो, मेरे को चाय पिला दो, मेरा तो आज बॉडी पेन हो रहा है, ये हो रहा है, उन लोगों के साथ कोई भी खड़ा होना नहीं चाहता। और मैं आपको बता दूं, आपकी लाइफ में आप कहाँ तक ग्रो कर सकते हो वो डिपेंड करता है कि आप किन 5 लोगों के साथ रहते हो। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो आप टॉप पे जा सकते हो। अगर आप एवरेज लोगों के साथ रहोगे तो आप एवरेज ही रहोगे। और लाइफ में मैं बता दूं, 90% लोग एवरेज ही हैं, 10% ही ऐसे हैं जो सुपर हैं, और कंपटीशन 10% में ही है और किसी में नहीं है। और लास्ट में मैं बताऊं, एफ वर्ड है फेलियर। मैंने भी पहले भी बोला था, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। सुंदर पिचोई जो सीईओ है गूगल का, उससे किसी ने पूछा था कि जब तुम किसी का इंटरव्यू करते हो जिसकी सैलरी 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ होती है, तो तुम क्या क्वेश्चन पूछते हो उससे? उसने ये कहा था कि मेरे पास जब कोई भी आदमी 5 करोड़ से ऊपर सैलरी वाला आता है इंटरव्यू के लिए, तो 7 राउंड ऑफ इंटरव्यू पहले मेरे नीचे एचआर और बाकी टीम वाले कर चुके होते हैं। तो उसने कहा फिर आप क्या पूछते हो उससे? आपके पास अगर 2 कैंडिडेट आ रहे हैं या 4 आ रहे हैं, उसमें कैसे सिलेक्ट करते हो? तो उसने कहा मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ उनसे, हाउ मेनी टाइम इन लाइफ यू हैव फेल्ड एंड हाउ यू हैव रिस्पॉन्डेड टू दैट फेलियर। मैं आपसे पूछूं ना, अगर क्या लाइफ में कहाँ फेल हुए होंगे? हम लोगों को स्कूल कॉलेज में फेलियर सिखाया नहीं जाता। हम सब लोगों को बोला जाता नहीं, गुड गुड गुड, यू आर वेरी गुड, कंसोलेशन प्राइज भी दिए जाते हैं। मतलब क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 ट्रॉफियां होती हैं, क्योंकि पार्टिसिपेशन अवार्ड भी मिल जाता है। कईयों के पास सर्टिफिकेट मिलते हैं पार्टिसिपेशन के। पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू? तो आई थिंक वो हम भी एक गलत काम करते हैं कि हम फेलियर स्कूल और कॉलेज में नहीं देखते। लाइफ में जब आप आओगे तो फेलियर आपको होगा, कहीं ना कहीं आपकी प्रमोशन नहीं होगी, किसी और की प्रमोशन हो जाएगी, तो आपको गिल्ट कॉन्शियस होगा कि मेरा प्रमोशन नहीं होगा। और दी अदर इज बेसिकली फोकस। लाइफ में कभी डिस्ट्रैक्शन मत करो। आज की डेट में मोबाइल के साथ में हमारा इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है कि हम सुबह शाम इसमें घंटों 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 लगा रहे हैं, हम डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं। मैं देखता हूं कि अगर मेरे को कोई इंपॉर्टेंट फोन भी करना है तो व्हाट्सएप खुल गया और व्हाट्सएप में कोई मैसेज आ गया तो मेरा ध्यान व्हाट्सएप की तरफ जाता है, फोन की तरफ नहीं जाता, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं मैं। कोई भी आदमी हो सकता है। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, फोकस रखना है। और फोकस का फुल फॉर्म होता है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। तो फोकस प्रॉपर रखिए। मैं आपने स्कूल कॉलेज में कभी वो लेंस के साथ जलाए होंगे पेपर, या किसी बच्चे का हाथ जो है, हम लोग तो मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ जलाते थे स्कूल में क्या। तो आई थिंक फोकस आपका होगा ना, तभी वो सूर्य की किरणें जो है वो फोकस होके वो जला सकती हैं, कागज को मोरी कर सकती हैं। आप देखिए, अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं तो आपका फोकस किस पे होता है? जो 100 लोग या 200 लोग आए हैं उन पे फोकस होता है, या जो 4 दोस्त आपके नहीं आए उन पे फोकस होता है? आप उन्हीं की वेट कर रहे होते हैं कि यार वो कहाँ है, वो कहाँ है। आपका खाली फोकस उन 4 लोगों पे होता है, बाकी 100-200 लोगों पे नहीं होता। तो आपको फोकस करके चलना है कि आपको लाइफ में करना क्या है। और गोल सेट करिएगा। जी स्टैंड फॉर गोल्स। छोटे छोटे गोल्स करिएगा। कभी ये मत सोचो कि मैं सीईओ बन जाऊंगा कंपनी का, मैं या कोई ओनर बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा। अगले 5 साल में क्या करना है वो सेट करो। उसके बाद 5 साल में क्या करना है वो सेट करो। उसके बाद 5 साल में क्या करना है वो। छोटे गोल सेट करोगे तो ठीक रहेगा। एंड लास्ट वर्ड विच आई विल ट्राई टू से इज गुरु। हैव अ गुरु विद यू। कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई गुरु होना चाहिए जिससे आप शिक्षा ले सकते हो। मैंने पहले भी कहा, योर अर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर लर्निंग। आप अपनी लर्निंग बढ़ाते जाइए, आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। स्किल्स बढ़ाते जाइए, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। आपको लाइफ में ओरिजिनल रहना है, कोई कॉपी नहीं करना। मैंने पहले कहा कि जितनी आपकी हाइट है, जो कलर है, जो फीचर्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं, भगवान ने बहुत अच्छा दिया आपको। उसी के साथ में आप जी के दिखाइएगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। एंड व्हेन यू ग्रो अप, ऑलवेज bring team upward, always have a good team under you. And the last thing is that you should be a good storyteller. आप अच्छे कहानी सुनाने वाले होने चाहिए। देखो, कहानी अगर आपकी अच्छी है तो ही ठीक होगा। देखिए, आपकी लाइफ की पहले पिक्चर का पहले इंटरवल तक की कहानी लिखी जा चुकी है। एवरेज लाइफ अगर आप देखो तो जो आप जियोगे वो 50, 55, 60 की होगी। उसके बाद की जो रिटायरमेंट लाइफ है, 25 साल की जिंदगी आपकी अभी तक ऑलमोस्ट पिक्चर का पहला हाफ खत्म हो चुका है। इसके बाद का सेकेंड हाफ आपने क्या लिखना है, वो डायरेक्टर आप है, राइटर आप है, प्रोड्यूसर आप है, आप खुद लिख सकते हैं। एंड यू विल हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। आपको पता है, मुगले आजम पिक्चर थी एक, 1944 में शुरू हुई थी और 1960 में तैयार हुई थी, 16 साल में। उसमें के आसिफ जो थे उसमें थे, और
उसमें बड़े गुलाम अली साहब ने गाना गाना था। बड़े गुलाम अली साहब गाना नहीं गाते थे, जैसे लता मंगेशकर किसी भी शादी में गाना नहीं गाती थी। और लता मंगेशकर ने अभी भी लिखा था एक चैट में कि मेरे को अगर कोई 10 करोड़ रुपए भी दे देते तो मैंने कभी किसी की शादी में गाना नहीं गाया था। तो ऐसे ही बड़े गुलाम अली साहब कभी भी पिक्चरों के लिए गाने नहीं गाते। तो देन जो थे नौशाद थे, उनको के आसिफ लेके गए और उन्होंने कहा कि लखनऊ में रहते थे बड़े गुलाम अली साहब। उन्होंने कहा ये गाना नहीं गाएंगे। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि नहीं, ये मैं पिक्चर बना रहा हूँ मुगले आजम, इसमें आपको गाना गाना है। उन्होंने कहा मैंने आपको बोल दिया गाना नहीं गाना, मैं नहीं गाऊंगा। तो उनको पता, उन्होंने ये अपनी तरफ से बोला कि यार मैं इसको इतना प्राइस बता दूं कि वो कभी गाना मेरे अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा। तो बड़े गुलाम अली साहब ने मजाक मजाक में बोल दिया कि मैं 50,000 रुपये लूंगा। उस टाइम पर एक दिन में गाना गाने के 300 रुपये मिलते थे। उन्होंने कितना ऑफर किया, उन्होंने कितना डिमांड किया? 50,000। उस टाइम पर के आसिफ के जेब में 10,000 रुपये की गड्डी थी, उन्होंने उसी टाइम पे दे दी उसको। तो सक्सेस पाने के लिए यू हैव टू पे द प्राइस। देखिए सक्सेस हर कोई आदमी चाहता है सक्सेस होना, पर यू विल हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। तो कभी भी कुछ काम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ अलग हटके करना पड़ेगा, अदरवाइज स्ट्रीम के साथ तो सभी तैर सकते हैं, अक्रॉस द स्ट्रीम आपको तैरना पड़ेगा। और वो कहते हैं ना, गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है। बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है। और फेलियर में भी मैं बता दूं, कहते हैं एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया और एक पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया। चट्टान वही होती है, अगर टूट जाएगी तो पत्थर हो जाएगा, कंकर कंकर हो जाएगा। अगर तराशा जाएगा, अगर आप अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करोगे तो आप एक मूर्त बन सकते हो जिसको लोग बाद में पूजेंगे। और बिफोर आई क्लोज द सेशन फॉर द क्वेश्चन आंसर, मैं बोलना चाहूँगा, कहते हैं जिंदगी सभी के लिए एक हसीन किताब है। जिंदगी सभी के लिए एक हसीन किताब है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई हर पन्ने को दिल से पढ़ रहा है, मतलब पैशन से पढ़ रहा है। जिंदगी सभी के लिए एक हसीन किताब है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई हर पन्ने को दिल से पढ़ रहा है और कोई किसी का दिल रखने के लिए पन्ने पलट रहा है। हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है। जी लो तो जिंदगी और खो दो तो यादें हैं। तो आई थिंक लिव लाइफ ए किंग साइज। भगवान ने आपको बहुत अच्छी जिंदगी दी है। पेरेंट्स ने अच्छा काम कर दिया कि आपको पढ़ा लिखा कर, अच्छा परवरिश करके इतना बड़ा कर दिया। आगे की इंटरवल के बाद की कहानी लिखने का पेन आपके हाथ में है, वो कार आपके हाथ में है। भगवान ने आपको अच्छी एक कार जिसके रूप में आपको एक यहाँ दिया है। और कार को भी मैं दोबारा से बताता हूँ, जैसे सेरेंडिटी प्रे में बोला है, करेज टू चेंज द थिंग्स विच यू कैन, एक्सेप्ट द थिंग्स विच यू कैन नॉट चेंज, एंड देन यू शुड हैव विजडम टू नो व्हाट यू कैन एंड व्हाट यू कैन नॉट डू। अगर कुछ चीजें अगर हार में अगर आप रिमूव कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप रिमूव नहीं कर सकते तो राइज अबव दैट लेवल, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाके अपने आप को सेटल करो लाइफ में। आई नाउ लीव द सेशन ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। द मॉडरेटर और somebody can moderate and ask the question on behalf of the audience. I will not go in the chat box, so somebody can moderate and ask the question on behalf of the students. Thank you, sir, for the highly enriching session. Our horizons about life and handling situations with composure have definitely broadened. And now we will take up a few questions. पहला क्वेश्चन पूछना मुश्किल होता है, पहला चुटकुला सुनाना मुश्किल होता है, पहला स्टेप रखना मुश्किल होता है, पहला स्टेप मून पे रखना मुश्किल था। इसीलिए आज नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम बोला जाता है, एल्ड्रिन एडविन का नाम नहीं बोला। इनिबिशन होती है हमारे को, लोग क्या कहेंगे, यार ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये कोई क्वेश्चन पूछने वाला था। जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हम एनालाइज और जज करना शुरू कर देते हैं। जब हम छोटे होते हैं ना तो दादी माँ से पूछते रहते हैं, ये आकाश नीला क्यों होता है, चिड़िया क्यों उड़ती है, समुद्र इतना बड़ा क्यों होता है। और बड़े होते होते हम कहीं ना कहीं एनालाइज और जज करना शुरू कर देते हैं कि ये मैं पूछूं या ना पूछूं, पूछूं या ना पूछूं। Thank you, sir, for this highly enriching session. Our horizons about life and handling situations with equity have broadened. Now, I would like to take a few questions by our audience. Sir, one of the questions are, sir, did you did failure ever scare you? What did you do when you failed or got stuck? You see, failure, as I've said, failure is always a part of success. You have to face failure on a daily basis. And let me tell you, I have shared with you that when I joined the first company, Procter & Gamble, I left the company. I faced the failure in the very first year.
But then I realized that no, I have to work on it. And after joining Bajaj Electricals also, I worked there for 10 years as a salesperson. Then one day I got a training program, and the program was from Shiv Khera. He has written a book called You Can Win. If you have not read, then I would suggest everyone to read a book. For your knowledge, let me just tell you, I am on LinkedIn also. I am on YouTube also. I've got a YouTube channel called Anil Basim Talks. And I have written a book which would get published next month. And the topic of the book is Reset Your Life. So there I got a chance to meet him and attend the training program. There I learned that you have to invest on yourself. So that was my turning point. So I have failed in my life number of times. But one thing I have learned that गिर जाना कोई नहीं होता, but you have to have a willpower to bounce back. Muhammad Ali said, will is more important than skill, because skill तो वो अगर रिंग में नीचे गिर गया तो धरी धराई रह गई. अब मेरी विल पावर है कि मैं उठूं या ना. आई थिंक बाउंस बैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लाइफ में आप बहुत बारी फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं होती, पर ये दृढ़ शक्ति होनी चाहिए कि आप बाउंस बैक करके खड़े हो और कहो कि नहीं मैं कर सकता. So the next question is, after the corona situation, colleges have reopened now, but during the lockdown, our focus and concentration have become really less. What can be done? देखिए, I have told you that you have got 24 hours in a day. So you have to see how 8 hours you leave for sleeping. The balance 16 hours you have to see how you utilize. देखिए, टाइम कभी आता नहीं है, जाता नहीं है. We come and we go. आज हमारी जिंदगी है, 100 साल के बाद या 50 साल के बाद में अभी आप और मैं रहेंगे नहीं रहेंगे, टाइम वही रहेगा. आपको ये देखना है कि आपको टाइम यूटिलाइज कैसे करना है. मैं आज भी कह रहा हूँ कि आपको 1 घंटा रोज अपनी लर्निंग के ऊपर बढ़ाना चाहिए. 1 घंटा रोज आपको फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर काम करना चाहिए. जितनी लर्निंग आप बढ़ाते जाएंगे, देखिए आज आपके पास में मोबाइल है, गूगल है आपके पास में, जितनी लर्निंग आप इसमें घर में बैठे बैठे यहाँ कर सकते हैं. पहले हमें लाइब्रेरी में जाके किताब ढूंढनी पड़ती थी, सेकेंड हैंड किताबें लेनी पड़ती थी. हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि हम किताब भी कॉलेज के लिए पढ़ ले लें. आज की डेट में बच्चे ट्यूशन पे जाते हैं, हज़ारों रुपये खर्चा हो रहा है. तो लर्निंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर स्टूडेंट तैयार होता है ना, तो टीचर अपने आप आ जाता है. आज देखिए, आज आप स्टूडेंट तैयार हैं, आप में से किसी ने इनिशिएटिव लिया कि इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए, तो मैं आ गया. अगर कोई इनिशिएटिव नहीं लेता तो मैं भी नहीं आता, या कोई और आता है, या पता नहीं आता है नहीं आता. तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट तैयार होना चाहिए पहले आपको शिक्षा देने के लिए. अगर आप राइट क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, पर आप फालतू का क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको कोई भी जवाब नहीं देगा और कहेगा कि आप बेवकूफ हो, आप बेवकूफों वाली बात करें. So next question is, as you have mentioned about developing skills, how can we do the same? How can you do the same? How can we do the same? Yeah. देखिए, स्किल आपको अलग अलग चाहिए. अगर आप आईटी में हैं तो आईटी की स्किल चाहिए. अगर आप कम्युनिकेशन में हैं, कम्युनिकेशन की. आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, फोटोग्राफर बने. देखिए, कोई भी प्रोफेशन जो आप चूज करना चाहते हैं, आप डीजे बनना चाहते हैं, डीजे बनना चाहिए. आप लाफ्टर चैनल में बनना चाहते हैं. आज की डेट में कितने लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में वो लाफ्टर चैनल बना के अपना वीडियो जो है वो चल रहे हैं. आज कपिल शर्मा क्या कर रहा है? कपिल शर्मा की एजुकेशन क्या है? उसको 2 लाइन इंग्लिश की नहीं बोलनी आती, पर उसके स्किल है कि वो लोगों को कनेक्ट कर सकता है. आप अपना स्किल ढूंढिएगा. और देखिए, आप ये मत सोचिए कि आपके पेरेंट्स उसको करने के लिए मना करेंगे. देखिए, जितने भी गलत काम आपके पेरेंट्स ने आपको बोले होंगे, मैं लड़कों के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, लड़कियों के बिहाफ पे नहीं बोल रहा. वो लड़कों ने सारे काम किया, मैंने सारे किए गलत काम जो उन्होंने बोले थे नहीं करने. पर अगर आप सही काम करना चाहती हैं और वो आपका कन्विक्शन सही है, तो आपके पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे. आपका जो कोई गाइड मेंटर है वो भी आपको सपोर्ट करेगा, पर आपका कन्विक्शन होना चाहिए. ये नहीं कि फोकस ही नहीं है आपका, सुबह कुछ, शाम कुछ, रात कुछ, और फिर दोबारा घूम के वहीं आ गए. आपका जब तक डेडिकेशन नहीं है. आज जो स्पोर्ट्स में जाते हैं लोग कितनी मेहनत करते हैं. आज भी देखो, अगर आप टीवी में देखिए, कुछ जो प्लेयर्स हैं वो अपना कितनी हार्डशिप की लाइफ जो है बताते हैं. आज चाहे सचिन तेंदुलकर है, चाहे कुछ भी हैं, जितने भी अच्छे प्लेयर रहे हैं, उन्होंने बहुत टाइम नेट में स्पेंड किया है, बहुत टाइम प्रैक्टिस में स्पेंड किया है. ऐसा नहीं होता कि वो जो है 5 स्टार होटल में एंजॉय करते हैं और अगले दिन जाके बैटिंग करते हैं. तो आपको अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए कि आपका स्किल क्या चाहिए. Okay, so next question is, how do we accept failure and overcome it? As you said, we are not taught about it. And move on to. देखिए, उसमें फेलियर को आपको, जैसे मैंने कहा, आपको कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. अगर आप किसी चीज से एग्री नहीं करते तो आपको लगता है वो चीज गलत है. जिस चीज से आप एग्री करते हैं आपको लगता है सही है. मैं एक्सेप्टेंस में आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप सुबह तैयार हो रहे हैं स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए,
और गलती से आपकी मदर ने आपके ट्राउजर के ऊपर कुछ स्पिल कर दिया, पानी या कुछ दूध कर दिया, तो आपको वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती, आपको गुस्सा आ गया, आपको एंग्री हो जाती है, ये आपको क्या कर दिया, ये कर दिया, मेरे को कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। और ऐसे ही अगर आप ग्रुप डिस्कशन में बैठी हुई हैं और पीएन ने आपके ऊपर थोड़ा सा वो पानी छिड़का दिया, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको टॉलरेंस आ जाती है। तो आपको टॉलरेंस आनी चाहिए एक्सेप्टेंस के साथ साथ। फियर आपको हटाना पड़ेगा। अगर आपको फियर है तो आपको कई बार ये लगता है कि यार आपको फियर ऑफ डेथ हो जाता है अगर आप बंजी जंपिंग नहीं करेंगे, रिवर राफ्टिंग नहीं करेंगे, माउंटेनियरिंग नहीं करेंगे। अगर आप उस फियर को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको एक तरह की वो लगता है एडवेंचर हो गया कि बहुत अच्छा काम कर लिया मैंने। तो माइंड जो है ना वो इमोशन से चलता है, तो आपको फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको फिर करेक्ट करके बाउंस बैक करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें आप जो चीजें नहीं एक्सेप्ट करते वही आपको लाइफ में टेंशन करती हैं, और जिस चीज को आप एक्सेप्ट, सिचुएशन कुछ भी आ जाएगी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना। आप इसके बाद में, इस प्रोग्राम के बाद में क्या होने वाला है आपको पता है? कुछ नहीं होगा। तो आप एक्सेप्ट करिए और रिस्पॉन्ड करिए, रिएक्ट मत करिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। हम ये कहते हैं ना, हम रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं, ठीक है ना। और हर चीज को सीरियसली करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप माइन्यूटली उन चीजों को नहीं करोगे तो आप कैजुअल हो जाओगे, और कैजुअल चीज में आदमी फिर वो जनरल वार्ड में जाता है, कैजुअलिटी में ही जाता है, वो आईसीयू में नहीं जाएगा। अगर आप आईसीयू में जाओगे तो आपको अच्छी तरह मॉनिटर किया जाएगा। तो आई थिंक सीरियसनेस इन द लाइफ, इन द बिजनेस और इन स्टडीज पेस, और कैजुअल चीजें अगर रहती हैं तो वो फिर कैजुअल ही रहते हैं, और उनको फिर वो एक 80% की कैटेगरी में रहते हैं, जिनको खाली 2 टाइम का पंच और 1 टाइम का लंच के लिए ऑफिस जाते हैं, और उनके लिए फिर वही है रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना। So next question is, everyone wants to rise up to parents' expectations, but sometimes due to failure, a sense of self-doubt arises. How can we deal with that? मैंने पहले बताया सेल्फ डाउट को आपको दूर करना पड़ेगा। आप बताओ कि नहीं, उसके ऊपर काम करना पड़ता है ना, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। उसके लिए आप पहले आपको ये बताना चाहिए कि मेरी गलती क्या है। काफी लोग तो गलती मानते ही नहीं, बोले मेरी गलती नहीं, भगवान की गलती है। अरे भगवान ने तो आपको पैदा कर दिया, सब कुछ कर दिया, बड़ा कर दिया, उसकी क्या गलती है भैया? उसकी गलती ये है कि तुम काम नहीं कर रहे। आप उस चीज को इम्प्रूव करिएगा ना, आपको किसी को प्रूफ नहीं करना, आपको इम्प्रूव करना है। और जैसे वो एक चट्टान में से जो है कलाकार जो है वो फालतू की चीजें निकालता है, तभी मूर्ति बनती है ना। अगर वैसे वो पत्थर मारने से वो छेनी मारनी शुरू कर, टूट जाएगा। आपको पहले ही देखना है कि आप में कमी क्या है, उस चीज को इम्प्रूव करना है। आज भी देखो क्रिकेट में कोहली अभी नहीं चल रहा, और शर्मा जो है, रोहित शर्मा नहीं चल रहा। उनका गाइड, उनका जो वो कोच है, वो देख रहा होगा कि क्या गलती कर रहे हैं, क्यों ऑफसाइड की बॉल को जाके मारते हुए खेल रहे हैं। तो आपको वो चीजें इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्या करना है और क्या नहीं करना। हमें ये पता है करना क्या है, पर हमें ये नहीं पता क्या नहीं करना। जो नहीं करना वो बहुत जरूरी है। Okay, so next question is, with decades working in the industry, I'm pretty sure you have faced a ton of competitions. How did you set yourself apart from other candidates or colleagues? देखिए, 2 स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज द पीपल स्किल, द अदर इज कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको पीपल फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप लोगों के साथ काम कर सकते हैं, लोगों के साथ कोहेसिव तरीके से काम कर सकते हैं, लोगों को ये होना चाहिए कि इसके साथ मैं बात शेयर कर सकता हूँ, पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, तो आप एक लीडर बन सकते हैं बहुत ऊंचे जगह पे। और दूसरी, आपकी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। कभी भी क्लेवर कम्युनिकेशन मत करो, क्लियर कम्युनिकेशन करो। आपके पास में वर्ड्स, वोकैबुलरी सही होना चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, और एक क्लियर कम्युनिकेशन करोगे। 2 स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। So next question is, how to avoid previous negative experiences and distractions and stay focused and motivated for our goal. देखिए, लाइफ में कभी भी आप हर टाइम पॉजिटिव नहीं रह सकते, नेगेटिविटी आती है, और नेगेटिविटी को छोड़ के आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना पड़ता है। मैं कई बार कहता हूँ, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, मैं आपको इंस्पायर कर सकता हूँ कि आप मोटिवेट खुद हो। घोड़े को आप पानी तक लेके आ सकते, पिला नहीं सकते। तो आई थिंक नेगेटिविटी आती है, और नेगेटिविटी से मन हटा के आप पॉजिटिव चीज़ों में आओ, और फिर पॉजिटिव चीज़ों में आने के साथ में प्रॉपर एक्शन करो। खाली पॉजिटिव होने से भी काम नहीं होने वाला। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड की ही बात होती तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो है वो वैक्सीन जो है पॉजिटिव एटीट्यूड के लग रहे होते, रादर देन कि ये कोविड के लग रहे होते। Okay. So next question. We are at stage and age of life where we really distract by a lot of people, a lot of things. Sometimes we are stuck whether our parents are saying right or not. Should we do that or not? Or we should just listen to ourselves?
देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि पेरेंट कभी गलत होते हैं, पर पेरेंट की भी एक लिमिटेड नॉलेज होती है। अब 10वीं में जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो पेरेंट्स को क्या पता है कि उसको इंजीनियरिंग लेनी है, मेडिकल में जाना है, सीए कराना है या क्या कराना है। वो अपने जो 5-7 जो जानने वाले होते हैं उन्हीं से पूछ लेते हैं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आई थिंक पेरेंट्स की बात पूरी नहीं सुननी चाहिए, अपना पीयर से पूछना चाहिए। अपने, मैंने आपको बताया जैसे आपका कोई ना कोई आपका वो एंकर ऑफ फेथ होना चाहिए जिसके जो आपको सही ढंग से गाइड कर सकता है। पेरेंट की बात सुनिएगा, पर अगर कुछ वो ये जरूरी नहीं कि वो जो बात कर रहे हैं सारे सही। मैं आपको बताता, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ने इंजीनियरिंग करी है। मैं उनसे पूछता हूँ तुमने इंजीनियरिंग क्यों करी है, तो कहते हैं आपने करवाई है। हम तो नहीं चाहते थे करना, हमारे पास चॉइस ही नहीं थी। आपने 10वीं के बाद सीधा घुसेड़ दिया हमारे को साइंस लो क्यों हमारे पर। और जिनकी परसेंटेज अच्छी होती है उनको साइंस में घुसेड़ देते हैं। जो जिनके फादर डॉक्टर हैं वो कहते हैं तू भी डॉक्टर बन। उसके बाद जो रह जाते हैं कहते हैं ये कॉमर्स कर लेगा। उसके बाद जो छट जाते हैं कहते हैं तुम एक काम करो आर्ट्स कर लो। और जो आर्ट्स कर रहे होते हैं उनको लगता है नहीं ये छठे हुए हैं बिल्कुल। पर ऐसी कोई बात नहीं कि जो आर्ट्स कर रहा है वो कोई लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता। मैंने खुद आपके साथ शेयर किया, मेरा 58% मार्क्स थे बीएससी में। मैं आज प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी में रिटायर हुआ हूँ, तो मैंने अपने ऊपर काम किया तब हुआ। यही अगर मेरे पास 3600 IIT IIM भी आए करने के लिए नौकरी, पर वो मेरे से कम सैलरी पे और कम पोजीशन पे रहे, उनको हमने आज भी वो मेरे नीचे काम करके गए। Okay, so it was an ecstatic day for all of us here. Thank you for giving us this opportunity to have you here today and for bestowing us with the much needed advice in today's tedious world. Also, an applaud for indomitable organizers, unfailing graciousness, and hectic planning of the society members, and finally to the audience for being kind and interactive. Thank you all for listening to us so patiently. We would also like to let you know that we will be having our events offline in the college premises. Come join us at Dayal Singh College on 29th April for our event Chase Through the Maze and Hit Wicket, and on 30th April for the event in Terrorville. If you could come, we guarantee you that you will have lots of fun in attending this event. Thank you all. Thank you. Purvi, I am not actually moving out. I am doing only online. There are some restrictions from the family point of view. So next month, if the COVID position remains, because there was some COVID in the house, so I don't want to expose myself. I was called tomorrow also in one of the other college where the gathering was more than 1,000 people. So I don't want to move out so that somebody else could get the COVID. So for that, otherwise, if you check my LinkedIn account, I was there in IMS Ghaziabad College. I was there in MDI Gurgaon. I was there in some of the other colleges physically. So hopefully, if the next month the things would be fine, I could join for your next session where the students would join as a freshers for a keynote address in the college in the bigger hall as an audience. So that way I can come. So thank you very much. And I am on LinkedIn also. I am on Facebook. I am on your YouTube also. Some of you who would like to listen more of my videos can log into my YouTube channel called Anil Bhasin Talks. I won't request you to subscribe it, because if you like it, you subscribe. If you don't like it, don't subscribe. I don't request anyone to subscribe because I don't get any monetary benefit out of it. So that is the thing. So thank you very much for connecting and listening patiently. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. I'll log off now. Thank you, sir.